Hi, I am Manvi and today I'll be teaching you the chapter Plant Kingdom as you can see. So Plant Kingdom में basically हम पढ़ेंगे about the plants, उनका structure and their classification basically. Plant Kingdom is one of the kingdom like जो animals का classification होता है उसमें काफ़ी सारे phylums होते हैं. So same is with plants. We have 5 different phylums which are algae, biophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So these are the 5 phylums of the plant kingdom which we are going to study in details in this chapter. हम इन phylums के बारे में पढ़ेंगे and then we'll study about the alternation of generations. So I'll tell you what alternation of generations is. So plants, all the plants basically हम किन्हें बोलते हैं? All the green colored organisms which we see which are non-motile. Right, so basically they are plants, but apart from them, algae, blue-green algae, which we see in water, they are also included in kingdom plant. So R.H. Whittaker gave 5 kingdom क्लासिफिकेशन. अभी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन से पहले R.H. Whittaker नाम के एक साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था विच वॉज नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो इसके अंदर 5 किंगडम्स थे. दे वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, Plantae and Animalia. मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब इन दोनों के अंदर आते हैं. फंजाई के अंदर वी हैव द फंजाई. लाइक इन चारों में एक सिमिलैरिटी होती है. They all have cell wall. Okay, and animal cell का जो cell होता है, it lacks cell wall. So अगर हम cell wall के basis पे देखें, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के classification में divided होना चाहिए, with cell wall और without cell wall. But डिस्पाइट ऑफ दिस सिमिलैरिटी कि इन चारों के अंदर सेल वॉल होता है और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. ओके, पहले क्या होता था कि फंजाई को भी किंगडम प्लांटे में ही इन्वॉल्व किया जाता था, बट बाकी इसके बिकॉज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू इज कि फंजाई जो है इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर आइदर सैप्रोफाइटिक और हेटेरोट्रॉफिक. दैट इज ये कभी भी अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं. दे आइदर बिहेव एज अ सैप्रोफाइट्स लाइक मशरूम्स जो होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं. सो फंजाई और प्लांटे के अंदर ये डिफरेंस है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांट्स आर कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक. दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. इनके अंदर फोटोसिंथेसिस, इनके जो अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है वहां से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. वहां से ये लोग अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद जनरेट करते हैं. सो जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली दे आर द फीडर्स, जो सबको फीड करते हैं. सो दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक. प्लांट किंगडम के मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एक्सेप्ट सम आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स which do not make their food themselves. और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. सो प्लांट किंगडम इंक्लूड्स बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज इंसेक्टिवोरस पैरासाइट्स विच आर इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉफ्स. So this was the 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker and Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia.
So in this chapter, we are going to study in detail about the plant kingdom. Okay, so let's start with the plant kingdom. So plant kingdom के जितने भी organisms होते हैं, they are all eukaryotic, chlorophyll containing, they have cell wall. They are life dependent. So these are some of the characteristics of the plants. They are eukaryotic. Eukaryotic means कि जो उनका cell है that is not of primitive kind. इसमें well organized cell organelles present होते हैं. Then they are chlorophyll containing. Chlorophyll is the green colored pigment of a plant cell. Chlorophyll is the pigment which helps in performing the process of photosynthesis. Photosynthesis क्या कौन सा process होता है? Everybody knows that photosynthesis is the process of making their own food by plants by absorbing sunlight with the help of chlorophyll. सभी plant के जितने भी cells होते हैं, they have a cell wall. Because they are not like us who live in a protected environment. ये बहुत ही खुले environment में रहते हैं. And one more thing, they are not motile. They cannot move from one place to another. They stick to only one place. So that is why they have cell wall to protect themselves during harsh conditions. They are autotrophic, as I told you कि chlorophyll की वजह से ये autotrophs होते हैं. इनके कुछ exceptions होते हैं, कुछ insectivorous plants होते हैं, कुछ parasites होते हैं जो दूसरे plants पे होते हैं. And they are life dependent. जितने भी animals हैं, सबकी life is dependent on the plants. We get food from the plant. हमारी जितनी भी food chains होती हैं, they all start from the plant kingdoms. Aquatic food chain. Aquatic food chain के अंदर क्या होता है? वहाँ की जो food chain होती है वो start होती है algae से. Algae grows in water, then phytoplanktons or zooplanktons eat it. So in this way it goes on and on. So ये start होती है algae से. So plant kingdom जो है, they are the life dependents. So these were the characteristics of the plant kingdom. Now comes the classification of the plant kingdom. So as we all know कि kingdom के बाद we have phylum, then we have class, order, family, genus, and then species. So we will not go into the much details. We will just study about the phylum in this chapter. So plant kingdom के अंदर 5 phylums होते हैं. These are the algae,
the lowest one. Then bryophytes, then pteridophytes, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंड इसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स. सो प्लांट्स का जो ये वाला क्लासिफिकेशन है, इट वॉज गिवन बाय सर जॉर्ज बेंथम एंड J.D. Hooker. Bentham and Hooker classification कहते हैं हम इसको. This is the modernist classification and it is highly acceptable. So he divided the plant kingdom into the 5 different phylums: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ये जो classification based है, it is a kind of phylogenetic classification. फाइलोजेनेटिक मीन्स ये इससे इवॉल्व हुए, ये इससे, ये इनसे, एंड इन दिस वे. सो दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. हर एक फाइलम एक दूसरे से लिंक्ड है. फॉर एग्जाम्पल जो एल्गी है इनके अंदर, वो सबसे पुराना फाइलम है. इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक आप बेसिकली प्लांट को कैसे कैरेक्टराइज करते हो? उसमें लीव्स होने चाहिए, उसमें फ्रूट होना चाहिए, उसमें रूट्स होने चाहिए, उसकी स्टेम या ट्रंक होनी चाहिए, एंड वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, राइट? सो एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता है. इट डजंट हैव प्रॉपर लीव्स, रूट्स एंड ऑल, बट इट इज अ प्लांट. व्हेन वी स्टडी अबाउट द एल्गी, देन वी विल स्टडी इट इन डिटेल. देन कम्स द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं amphibians of the plant kingdom. Why? Because they need water for reproduction. For the fusion of gametes, it needs water. Otherwise, it will not prosper. Then comes the pteridophytes. Pteridophytes जो होते हैं, they are the ornamental plants. इनमें ना कोई आपको fruit मिलेगा, ना ही ये proper plants होंगे, but they are the ornamental plants, like ferns and all. Gymnosperms plants होते हैं, proper plants and trees होते हैं, but they do not have fruits. They are not fruit bearing. And जो angiosperms होते हैं, they have all the characteristics of a proper plant. इनके अंदर सीड भी होता है, आपको स्टेम भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा, बड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. सो एंजियोस्पर्म्स इज व्हाट यू कॉल एज प्लांट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स नहीं होते हैं. ऑल ऑफ देम आर प्लांट्स. So it is based on, this classification was based on the phylogenetic classification and it was given by George Bentham and J.D. Hooker. And one more thing, पहले क्या होता था, जो क्लासिफिकेशन होता था वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग होता था, लाइक कि प्लांट दिख कैसा रहा है, इसका हैबिट कैसा है, लाइक कि एक्वेटिक प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फ्रूट देता है, नहीं देता, ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है. सो पहले जितने भी क्लासिफिकेशन होते थे, बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है उससे पहले, सो दे वर लाइक दिस, बेस्ड ऑन द हैबिटेट, कलर, शेप, साइज, टाइप ऑफ फ्रूट, हैव सीड और नॉट. सो इस बेसिस पे होता था. तो दैट मीन्स कि पहले हम जो क्लासिफिकेशन करते थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन, इट वॉज बेस्ड ऑन हैबिट, color, size, shape, habitat. That means कि ये external features पे डिपेंड करता था. But with the growing technology, हम पहले प्लांट को बहुत ही बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, लाइक कीमोटेक्सोनॉमी, numeric taxonomy, taxonomy is referred basically to the classification, and cytotaxonomy. So
एंड जो साइटोटेक्सोनॉमी है इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. Like chromosome number, structure, behavior. So इन सब से हमें, इन तीनों से, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इनसे हमको क्या क्या पता चलता है. वी हैव इट्स एनाटमी, we studied embryology, we study its phytochemistry, and as well as structure. Okay, so इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स बताता है एंड इन तीनों से हमें उसकी एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, हमको सब कुछ पता चल जाता है. सो दिस वन इज बेटर ना, टेक्नोलॉजिकल वन. दिस इज बिकॉज क्या होता है कि अगर हम अपीयरेंस से सिर्फ किसी को जज करेंगे, एज देयर इज अ कॉमन सेइंग, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर. सो सिमिलरली इट्स हियर कि किसी भी चीज को उसके एक्सटर्नल फीचर्स से जज नहीं करना चाहिए. अंदर भी काफी सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं. सो पहले जब हम एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे जब इनकी क्लासिफिकेशन करते थे तो क्या होता था कि जो बहुत ही ज्यादा लिंक्ड, बहुत कॉमनली लिंक्ड, बहुत पास पास वाले जो प्लांट्स होते थे वो सेपरेट हो जाते थे. बट इनके बेसिस पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि प्लांट एक्सटर्नली सेम दिखे, बट उसकी जो एनाटमी होगी, उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी होगी कि वो कैसे डेवलप हुआ है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके अंदर कौन से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं. सो ये सब हमको पता चलता है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड दैट इज वाई जो बेंथम एंड हुगर की जो क्लासिफिकेशन थी it was not based on the external features, it was based on the internal features. So the classification which is acceptable is based on anatomy, embryology, phytochemistry and structure as well.